Okay, beta. Assalamu alaikum ji. Today we are going to start the topic kinematics. So kinematics basically क्या है बेटा? It is branch of mechanics. हमारे पास एक branch है mechanics की, branch of mechanics. नहीं, dynamics भी है, kinematics भी. So there are two branches of mechanics. एक है kinematics और एक है dynamics. So branch of mechanics in which motion of object is discussed, or motion of body is discussed without discussing cause of motion. Without discussing the cause of motion. This is called kinematics. और जिसके अंदर हम मोशन को भी डिस्कस करते हैं as well as cause को भी डिस्कस करते हैं, that is called dynamics. The motion of the body is discussed as well as cause of the motion is discussed, that is called dynamics. So बेटे kinematics के अंदर first of all we should know what is rest and what is motion. So in the case of rest, body is not moving with respect to surroundings. और बेटा मोशन के अंदर body is changing position with respect to surroundings. So क्या हम मोशन में हैं इस वक्त? The answer is yes and no as well, both. So with reference to the room, so we are not changing our position right now. It means कि हम rest पे हैं. Agar if someone is standing on any other planet observing us, so with reference to that, obviously we are in motion. So इस particular case के अंदर, when the body is at rest, its velocity is taken as 0, and when the body is in motion, so velocity is not equal to 0. With respect to, this is with respect to. Now we have to discuss the differences between distance and displacement. So what is distance? It is the total path between two points. And displacement क्या है बेटा? It is shortest so shortest path between 2 points. And it should be a directed path. So आप बेहतर है लिख दें, it is the shortest directed path between 2 points. Shortest directed path between 2 points. जो distance है, this is basically a scalar quantity. इसमें direction नहीं होती. जो displacement है, ये बेटे आपके पास क्या है? ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर हमें डायरेक्शन देनी होती है या रिक्वायर्ड होती है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड पाथ बिटवीन द टू. डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है, दैट इज मीटर.
डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट है वो भी आपके पास मीटर है। जो डिस्टेंस है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल एस। अच्छा, स्ट्रेट पाथ पे, ऑन अ स्ट्रेट पाथ distance is actually equal to displacement, and on a curved path distance is always greater than displacement. Distance on a circular closed path is circumference, और जो डिस्प्लेसमेंट है on a circular closed path is zero. सो अगर ऑब्जेक्ट जहां से अपना जर्नी स्टार्ट करेगा वहीं अगर वापस ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा, सो द डिस्प्लेसमेंट वुड बी जीरो. सो इफ दिस इज अ सर्कुलर पाथ, this is point A, we have moved on a closed path and we have just reached the point from where we started the journey. So मेरा distance जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, A से लेकर A तक जो होगा that is circumference, इसको मैं 2 pi r कह सकता हूँ. और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें A से लेकर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी बेटा वो हमारे पास जीरो हो जाएगी. अब जरा ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में एक्चुअली डिफरेंसेस हैं क्या. सो दिस इज पॉइंट A, this is point B. So for example, this is the total path between the 2 points. So we would say this is actually what, this is the distance. और अगर हम displacement की बात करेंगे तो this is basically the shortest directed path. So ये बेटा हमारे पास क्या है, this is actually displacement. अब यहाँ पे इसके साथ कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, या इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो इसकी हम करते हैं. ये हमारे पास वो स्टार्टिंग पोजीशन है. सो दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज योर स्टार्टिंग पोजीशन. सो यहां से ऑब्जेक्ट को जब हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया और दिस ऑब्जेक्ट कम्स दिस वे द सेम, सो चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या ऑब्जेक्ट वापस नीचे आ रहा है, सो दोनों केसेस में जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव ली जाएगी. DISP मींस डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. एंड अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से नीचे चला जाता, नीचे जा रहा है या नीचे से वापस ऊपर आ रहा है, सो द डिस्प्लेसमेंट वुड बी टेकन एज नेगेटिव. जी, स्टार्टिंग पोजीशन से ऊपर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेंगे, स्टार्टिंग पोजीशन से नीचे हम डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेंगे, चाहे ऑब्जेक्ट जा रहा है या वापस आ रहा है. सिमिलरली इफ दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन, सो स्टार्टिंग पोजीशन से राइट साइड अगर हमने पॉजिटिव कंसिडर की है, सो चाहे ऑब्जेक्ट राइट साइड पे जा रहा है या स्टार्टिंग पोजीशन की तरफ वापस आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव लेंगे. और अगर लेफ्ट साइड पे जा रहा है ऑब्जेक्ट, चाहे वहां से वापस आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे. एस का मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है. ठीक है. और यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हम जीरो ले लेंगे. तो सिमिलरली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बेटा जी हम क्या ले लेंगे, जीरो एट द स्टार्टिंग पोजीशन. इज दैट क्लियर जी? Any questions so far? Online students, are you done writing it all? Yes, sir. May I proceed? Okay, fine. I'm waiting for you.
सो इफ राइट साइड इज टेकन एज पॉजिटिव तो लेफ्ट नेगेटिव लेनी पड़ेगी स्टार्टिंग पोजीशन से। अगर स्टार्टिंग पोजीशन से राइट पे आप नेगेटिव ले रहे हैं तो लेफ्ट को फिर आपको पॉजिटिव लेना, लेफ्ट ऑफ स्टार्टिंग पोजीशन या बिलो स्टार्टिंग पोजीशन। अब यहाँ पे आपने एक दो पॉइंट्स और जोड़ने हैं कि ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अ स्पीड। These are the key points. Gradient of distance time graph, gradient of distance time graph gives speed. Gradient of displacement time graph gives velocity. क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए होती। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके अंदर हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। अब हमें कुछ टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट के बारे में जानना है। टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। सो इसके अंदर अगर हमारे पास ये ग्रेडियंट यूं है, सो दिस इज कॉल्ड जीरो ग्रेडियंट। अगर ये ग्रेडियंट यूं है, दिस इज कॉल्ड इनफिनिट ग्रेडियंट। अगर ये ग्राफ यूं है या यूं है, सो these both are called positive uniform gradient। अब सिमिलरली अगर ये आपके पास ग्राफ कुछ यूं है, स्ट्रेट लाइन है, नेगेटिव में जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव यूनिफॉर्म ग्रेडियंट। अगर ग्राफ जो है वो इस तरह से है कि ये लाइन एक्स की तरफ मुड़ रही है, बेंड कर रही है, सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। और अगर ये लाइन बेटा यहां से इधर जा रही है, हमने एक्सेस के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, दिस लाइन इज गोइंग दिस वे, सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। ठीक है, ओके। ग्रेड नेगेटिव जो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है, याद रखें बेंडिंग टूवर्ड्स एक्स होगा, एक्स एक्सिस, तो वो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट कहलाएगा। अच्छा, अगर बेटा ग्रेडियंट आपके पास यूं जा रहा है, सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, वाई की तरफ बेंड कर रहा है। और अगर बेटा यूं होगा, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। Is this clear? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू डन बेटा? यस सर। फाइन, ठीक है, ये वाला रहेगी। अच्छा, हाउ दे आर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये देखिएगा। अगर ये बेटा आपके पास यूं है,
and it is a straight line. So it is positive uniform gradient, चाहे वो पॉजिटिव y एक्सिस में हो या चाहे नेगेटिव y एक्सिस में, इट्स अ स्ट्रेट लाइन. अब अगर ग्राफ बेटा यूं हो आपके पास, लाइक नीचे की तरफ जा रहा होगा, इट इज नेगेटिव यूनिफॉर्म ग्रेडियंट, चाहे वो नेगेटिव y एक्सिस में है चाहे वो पॉजिटिव y एक्सिस का. इफ द ग्रेडियंट इज दिस वे, ये देखिए, एज फार एज वी आर मूविंग अहेड, ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम. सो दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग ग्रेडियंट. ठीक है, because it is in the positive y axis, that is why it is called positive decreasing gradient. और अगर आपके पास ये इस तरीके से होता कि इनिशियली तो आपके पास स्टीपनेस नहीं है, बाद में as far as we are moving, so the gradient starts to increase, this is called positive increasing gradient. और अगर नेगेटिव y axis के अंदर ये बढ़ रहा है तो it is called negative increasing gradient. It would be in the negative y axis. ग्रेडियंट शुरू में बेटा आपके पास ज्यादा होगा, ज्यादा स्टीपनेस है, और आगे जाते हुए स्टीपनेस जो है इट स्टार्ट्स टू डिक्रीज. इज दैट क्लियर? नाउ अब मुझे थोड़ा सा आगे फर्दर इस चीज को समझाना है. अगर ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्लैश कांस्टेंट वेलोसिटी. और अगर बेटा ग्रेडियंट यूं है आपके पास, दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग वेलोसिटी. अगर बेटा ग्रेडियंट यूं है आपके पास, दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग वेलोसिटी. क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है. तो यूनिफॉर्म ग्रेडियंट गिव्स अस यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट गिव्स अस इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट गिव्स अस डिक्रीजिंग वेलोसिटी. इज दैट क्लियर बेटा? अच्छा, इफ दिस इज द लाइन, तो हमें लाइन की लेंथ नहीं देखनी, हमें उसकी स्टीपनेस देखनी है. तो हम कह सकते हैं दिस इज स्लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगर we have a horizontal line on the axis, this one, this is which type of gradient? This is zero gradient. So zero gradient gives you what? Zero velocity. Okay. Please do tell me once you are done with the work. Or let's students, are you done writing it? Yes, sir. Okay. May I proceed now? जी बेटा आगे चल. Okay, right. और अगर ये लाइन लेट सपोज नीचे चली जाती यूं करके, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव
यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिकॉज ये नेगेटिव यूनिफॉर्म ग्रेडियंट है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन. Now we have to write down the differences between speed and velocity. Speed क्या होती है? Distance traveled per unit time. Unit का मतलब होता है 1 सेकेंड, और वेलोसिटी क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. स्पीड बेटा आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है. रेट ऑफ चेंज इसलिए कहते हैं बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रही होती है तो डिस्प्लेसमेंट चेंज करती है. अगर जस्ट डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे और डिफरेंस नहीं लिखेंगे तो फिर आपके पास वेलोसिटी नहीं आती. तो वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट की चेंज से आती है. ठीक है, सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एस आई यूनिट दोनों का मीटर पर सेकेंड है. इसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और जो वेलोसिटी होगी दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. चेंज को डेल्टा के साथ डिनोट करते हैं, ये जो ट्राइंगल बनेगी. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. सर जी बेटा. सर ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है, सही है ना, कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. जी बेटा, पर हाँ अगर आप सही पर है. यूनिट टाइम लिख रहे हो तो फिर आप रेट नहीं लिखो. रेट का जी सर मतलब पर ठीक. यूनिट टाइम. तो ओके. स्ट्रेट पाथ पे बेटा स्पीड और वेलोसिटी सेम होते हैं, और कर्व पाथ पे स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी. डिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्पीड. हाँ जी. ग्रेडियंट ऑफ speed time graph and velocity time graph gives acceleration. तो दोनों के ग्रेडियंट से हमको एक्सेलरेशन मिलती है. एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ gives distance traveled. एरिया ऑफ velocity time graph gives displacement. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि एरिया ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हैज नो मीनिंग. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ के एरिया से हमें कुछ भी नहीं मिलता. ठीक है, ओके जी. मे आई प्रोसीड?
यहाँ पे कॉमन शेप्स फॉर एरिया कैलकुलेशन, नंबर 1 है ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। उसके बाद है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इट इज 1/2 टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय बेस। और एक और फॉर्मूला भी है इसका, वो बच्चे थोड़ा सा इसको गलत कर जाते हैं कभी कभार, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is sum of parallel sides multiplied by height। अब ये जो ये वाला फॉर्मूला है, ये कब लगाना है? ये आपको तब लगाना है बेस वाला, जब दो वर्टिकल साइड्स आपकी बराबर होंगी, ये वाली और ये वाली, और इसके साथ आपने बेस को मल्टीप्लाई करना। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपका ट्रेपीजियम जो है, लेट सपोज वो यूं करके है, तो ये साइड और ये साइड बराबर होगी, और इस केस में आप वर्टिकल हाइट मल्टीप्लाई करें। सो हाइट के लिए आप ये वाला फॉर्मूला जो है उसको यूज कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, तो बहुत आसान है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारे पास? इज बेस टाइम्स हाइट। ये तो बच्चों को याद होता है। और जो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एरिया ऑफ, या एरिया अंडर आर्क या कर्व। फर्ज करें बेटा ये आ गया आपके पास। सो अगर आपके पास ये है, तो इसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं जैसे ये एरिया ऑफ क्वाड सर्कल है या क्वाड्रेंट है। एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आपको ये नहीं कहता कैलकुलेट करें, वो कहता है एस्टिमेट करें या अप्रोक्सीमेटली बताएं। अप्रोक्सीमेटली इसलिए क्योंकि ये प्रॉपर क्वाड सर्कल नहीं होता, बस क्वाड्रेंट नहीं होता। सो इसके लिए मुझे मालूम है, देखें कि मेरे पास जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि मेरी दोनों साइड्स हो सकता है बराबर ना हो, और वैसे हो भी तो मेरे पास यूनिट्स डिफरेंट है, तो इसीलिए इस साइड को मैं R1 ले लेता हूं, और बेटे मैं इस साइड को R2 ले लेता हूँ। सो दिस इज 1/4, क्योंकि चौथा हिस्सा है, फोर्थ हिस्सा है, सो इट इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स पाई R1 टाइम्स R2। तो ये अप्रोक्सीमेट के अंदर एग्जामिनर आपको कैम्ब्रिज में मार्किंग स्कीम में रेंज दे देता है। फर्ज करें आपका आंसर आया 28, तो वो कहता है 26 से 30 के दरमियान ऑल आंसर्स आर कंसिडर्ड टू बी करेक्ट। So this is the way how we are going to check it. Do you have any questions so far? Online students, any questions so far, beta? सर जी बेटा। सर ये आप कह रहे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है ना, ये दोनों है, तो इसमें कोई एग्जामिनर रेंज चेंज नहीं देता? नहीं, उसके अंदर आपका परफेक्ट आंसर आना चाहिए। एग्जामिनर ने इसके साथ लिखा होता है A1। A1 का मतलब होता है एक्यूरेट आंसर 1, जी। मतलब ये ठीक आंसर आना चाहिए। और इस तरह के नॉर्मली क्वेश्चन के साथ वो C1 लिखता है या C2 लिखता है। C1 का मतलब होता है कैलकुलेशन मार्क 1 या कंपेंसेशन मार्क 1। ओके। बाकी एरियाज परफेक्ट आंसर आने चाहिए। उसमें आपका 0.2 का भी फर्क आया, लेट सपोज आपने 11.2 लेना था और आपने गलती से 11.4 ले लिया, तो ये आंसर गलत कंसिडर किया जाता है। इसमें रेंज नहीं आती आपके पास, इसमें एग्जैक्ट आंसर आता है आपके पास। लेट मी सी द बुक।
मे आई प्रोसीड? अब जो बेटा आपके पास स्पीड है या वेलोसिटी है, इसको हम मेनली दो हिस्सों में सेग्रीगेट कर देते हैं। हमारी ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो स्ट्रेट पाथ के होते हैं। अगर स्ट्रेट नहीं है, वापस आ रहा है, तो फिर डायरेक्शन चेंज होने से स्पीड तो सेम रहती है, लाइक इंक्रीज करती है यूनिफॉर्म रेट पे, लेकिन वेलोसिटी के केस में हमें नेगेटिव एक्सिस में जाना पड़ता है। सो इसके अंदर हमारे पास जो पहला केस है, दैट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा जो है वो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर वी हैव टू मल्टीपल केसेस। वन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग स्पीड and the other is called decreasing speed. So अब आपको ये मालूम होने चाहिए। अब जो इंक्रीजिंग स्पीड है उसको हम नॉर्मली क्या किस नाम से जानते हैं? एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। और बेटा डिक्रीजिंग स्पीड को डीसेलरेशन के नाम से जानते हैं। डीसेलरेशन, डीसेलरेशन इज आल्सो नेम्ड एज रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब दोनों में फर्क क्या होता है? रिटार्डेशन के अंदर जरूरी होता है कि ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी जीरो हो, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन में जरूरी नहीं होता। ये चीज आपसे एंट्री टेस्ट में पूछी जाती है, अभी ए लेवल में आपसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है। सो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे, सो दिस इज वेरी इजी। आप ग्रेडियंट के थ्रू लिखेंगे यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड कि आपके पास इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। लाइक फर्स्ट सेकंड के अंदर 10 मीटर ट्रेवल हुआ, तो नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर भी 10 होगा, इट वुड बिकम 20। तो आपके पास इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस को मैं एस के साथ डिनोट करूंगा और स्पीड या वेलोसिटी को मैं वी के साथ डिनोट करूंगा। सो अगर आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड होगी, तो यूनिफॉर्म स्पीड किससे आ रही है? यूनिफॉर्म ग्रेडियंट से। तो आपको पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो हमको क्या देता है बेटा? स्पीड। सो यूनिफॉर्म ग्रेडियंट गिव्स यू यूनिफॉर्म स्पीड। इज दैट क्लियर जी? नाउ we have two other cases. One is called increasing speed, and other is called decreasing speed. तो increasing speed बेटा क्या होती है? This is decreasing increasing rate of distance traveled. Increasing rate of distance traveled. और बेटा जो decreasing speed है, we can say this is decreasing rate of distance traveled. अब इंक्रीजिंग स्पीड के अंदर आपके पास बेटा कौन सा ग्रेडियंट होना चाहिए? इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। और वो स्पीड आपको कैसे दिखेगी बेटा? ऐसे दिखेगी। अब आपके पास जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म ही हो, ये यूं भी हो सकती है स्पीड इंक्रीज, ये यूं भी हो सकती है आपके पास इंक्रीजिंग, बट वी कैन कंसिडर इट टू बी अ सिंपल केस राइट नाउ। सो हम इसको सिंपली ये कंसिडर करते हैं। अब डिक्रीजिंग रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड के अंदर क्या होगा बेटा? स्पीड जो है, अगेन एस का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है, एस का मतलब यहाँ पे स्पीड नहीं है। तो हमें मालूम है कि जो हमारा ग्रेडियंट है उससे हमारे पास क्या आती है? उससे हमारे पास स्पीड आती है। सो अगर हमारे पास डिक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा तो उसे बेटा डिक्रीजिंग स्पीड होगी। क्या मैं इसको डिसेलरेशन कह सकता हूँ? द आंसर इज यस। इससे पहले वाले केस के अंदर क्या था? इससे पहले वाले केस के अंदर था डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। सो बेटा इंक्रीजिंग ग्रेडियंट से आपको इंक्रीजिंग स्पीड मिलती है और डिक्रीजिंग ग्रेडियंट से आपको डिक्रीजिंग स्पीड मिलती है। इज दैट क्लियर जी? फाइन। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, कि अगर ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है
सो राइट साइड पे जाते हुए वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे, वापस आते हुए वेलोसिटी आप नेगेटिव लेंगे। मैं वेलोसिटी को VEL इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी दोनों को V के साथ डिनोट करते हैं। अब स्पीड आते जाते हुए दोनों से केसेस में पॉजिटिव ली जाएगी, बट वेलोसिटी के केस में वी हैव टू टेक द नेगेटिव साइन एज वेल। तो चाहे वो स्टार्टिंग पोजीशन से लेफ्ट पे था ऑब्जेक्ट, स्टार्टिंग पोजीशन से राइट पे था, दोनों केसेस में वेलोसिटी नेगेटिव ली जाएगी। और चाहे स्टार्टिंग पोजीशन से लेफ्ट पे था या स्टार्टिंग पोजीशन से राइट पे था, दोनों केसेस में वेलोसिटी को बेटे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सिमिलरली ओवर हियर एज वेल। सो अगर ये हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन है, सो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे, वापस आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे, नीचे जा रहा है वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे, ऊपर आ रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे। चाहे इक्विलिब्रियम पोजीशन या स्टार्टिंग पोजीशन से ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था या नीचे जा रहा था, दोनों सिचुएशंस के अंदर इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड्स तो इसका मतलब है वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, चाहे वो स्टार्टिंग पोजीशन से ऊपर था या नीचे था, इट वुड बी टेकन एज नेगेटिव। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होप द सिचुएशन इज क्लियर टू यू। टेक केयर। If you have any question, you may ask. If you have any question. No, sir, no questions. Okay then. Take care. Thank you and Allah Hafiz.